Hello everyone. Welcome in e-learning classes. Children, today we will continue our chapter number 4 in civics, state government. The chapter is divided into two parts. In first part, in today's video, we will continue the discussion of the topic state legislature, what is legislative council, what is legislative assembly, and how a bill become an act. Okay, in our next video, which is our next part, in which we will discuss, that is the state functionaries, in which we will know what is the work of a governor, of a chief minister, what is council of minister, what are civil services, and what is the work of an advocate general. First of all, know what is state legislature. Children, just as we have a house of the people or the Lok Sabha at the national level, तो इसी तरह से state level पर भी people's house होता है, which is known as legislative assembly और विधान सभा. Those people who are working here, they are known as MLAs, member of legislative assembly, and they are elected by the people of the state. In addition to legislative assembly, some state also have another house जस्ट सिमिलर टू राज्यसभा. जैसे कि राज्यसभा नेशनल लेवल पर वर्क करता है, उसी तरह से राज्यसभा की तरह दूसरा हाउस होता है जो स्टेट लेवल पर वर्क करता है, एंड इट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद. चिल्ड्रन, विधान परिषद इज नोन एज द अपर हाउस and legislature that have both the legislative assembly and legislative council. मतलब वो स्टेट, वो प्रोविंस जहां पर दोनों ही हाउसेज होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा, वो स्टेट कहलाता है बाइकैमरल. ओके, एंड दोज स्टेट जहां पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बेटा एक बात ध्यान रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर स्टेट में होती है. ठीक है, जरूरी नहीं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में हो, बट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है. एंड दोज स्टेट जहां केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दैट इज नोन एज यूनिकैमरल. Some states which have unicameral legislatures, those are like Andhra Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Karnataka. ये वो states हैं जो कि unicameral हैं. Legislative Council. Children, the state legislative council is the upper house in those states of India that have a bicameral state legislature, and the lower house being the state legislative assembly. Its establishment is defined in Article 169 of the Constitution of India. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 169th आर्टिकल में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात की. The main work of, or we can say the main functions of the legislative council, including enhancing laws, approving public expenditure, and monitoring the work of the government. The powers and functions of the legislative council are specified in Article 73. बेटा ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है that the common people are only indirectly involved in the election of this council, and electoral colleague for the council election comprise local authorities like teacher, graduates and MLAs. ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शंस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. बेटा द काउंसिल इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स. इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनमें से चेयरमैन जो कि इसका हेड होता है और डिप्टी चेयरमैन जो कि इसका सब हेड होता है, उसको ये काउंसिल खुद मिलकर सेलेक्ट करती है. एंड द काउंसिल इज परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व. ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो काउंसिल होता है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती. वाई, कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यू शुड नो इट कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, देयर वर्किंग पीरियड इज ऑफ 6 years. 6 years इनका वर्किंग पीरियड होता है. हर 2 साल में नए मेंबर्स आते हैं और हर 2 साल में पुराने मेंबर्स जो होते हैं जिनका 6 years पूरा हो चुका होता है वो रिटायर होते हैं. तो इस तरह से इसमें हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं और नए मेंबर इसमें रिक्रूट होते हैं और पुराने मेंबर इसमें जो है वो जाते रहते हैं. इस तरह से ये ऐसा बोला जाता है कि ये काउंसिल कभी भी खत्म नहीं होती है. ठीक है,
It is never ended and members are elected for a term of 6 years. Every second year, 1/3 of the member who complete their term are retired. 1/3 people are retired every in 2 years. ठीक है, तो हर 2 साल में जो 1/3 people है उनका दोबारा इलेक्शन होता है and then help to fill up these seats. जो बचे हुए सीट्स हैं वो इस तरह से फिल किए जाते हैं. बेटा टू बिकम अ मेंबर अ पर्सन नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. कुछ इसकी एलिजिबिलिटी जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मेंबर, जिसको इसका मेंबर बनना हो, दैट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव हर और हिज नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट ऑफ द स्टेट. एंड शी और ही, जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है, शुड नॉट बी बिलो 30 ईयर्स. मतलब उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए एंड ही शुड बी मेंटली साउंड. ठीक है, these are few eligibility for becoming the member of legislative council. Next topic is legislative assembly. Beta, every state has a legislative assembly, also called the Vidhan Sabha. It is composed of representatives directly elected by the people. अभी मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि in that peoples were indirectly elected, but here in legislative assembly those all representatives are directly chosen by the people. मतलब एक जनरल इलेक्शन होता है जो कि हर 5 साल पे होता है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चूज करते हैं. स्टेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन विल हैव पॉपुलेटली लार्ज असेंबली. ठीक है, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जबकि जिसमें कम पॉपुलेशन होती है, जिन स्टेट्स में लाइक सिक्किम, तो वहां पर कम पॉपुलेशन की वजह से कम मेंबर्स होते हैं. ठीक है, मींस यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. और the constitution has set a upper and lower limit for the number of seats in a legislative assembly and accordingly it cannot be more than 500 or less than 60. मतलब 500 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती. बेटा, in addition to the elected members, the governor can nominate one member of the Anglo-Indian community if she or he feels that the community is not adequately represented to the assembly. The assembly is led by the speaker and deputy speaker. जो इसके head होते हैं they are speaker and deputy speaker and who are elected by the MLAs. Children, the members of legislative assemblies are elected directly by the people. ठीक है, इसके लिए एक जनरल इलेक्शन होता है जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है. Once the assembly is dissolved, एक बात ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती. अभी मैंने उसका प्रोसेस आपको बताया था. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसॉल्व होने के बाद द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द प्रोग्राम फॉर जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली एंड पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड देयर कैंडिडेट्स. देयर मे आल्सो बी सम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. ठीक है, एंड द इलेक्शन कैंपेन बिगेन इट वेरी कॉन्स्टेंटली. जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था. ठीक है, जो मैंने आप लोगों को इलेक्शन सिंबल बताया था, इलेक्शन के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोगों को उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में भी समझाया था. व्हेन हु कैन बी द इलेक्टेड, कौन इसमें मेंबर बन सकते हैं, असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं. तो द मेन क्वालिफिकेशंस और वी कैन से द मेन एलिजिबिलिटीज आर अ कैंडिडेट कंटेंट्स द असेंबली इलेक्शंस ऑफ द स्टेट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी. मतलब किसी भी प्रदेश के राज्य में उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. नॉट लेस देन 25 ईयर्स, उसकी एज लिमिट जो है 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए. एंड इन केस ऑफ अ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दोज कास्ट और ट्राइब्स. अगर कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा रिजर्व सीट है तो दैट मेंबर शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजर्व सीट. Our next topic is from bill to act. बेटा, इन दिस टॉपिक वी विल नो कि किसी भी स्टेट में एक्ट कैसे, यानी कोई भी नया नियम जो लीगल, जिसे हम कानून बोलते हैं, वो कैसे बनता है. बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लीगलाइजेशन एंड हाउस वेयर दिस टेक प्लेस इज नोन एज द लेजिस्लेचर. आर रिप्रेजेंटेटिव बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट, द MPs, MLCs एंड MLAs. ठीक है,
आर द पीपल इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। किसी भी लॉ को बनाने के लिए ये मेंबर्स जो होते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसीज एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मिलकर लॉ को पास करते हैं। सो दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। ठीक है। द लॉज फॉर द होल नेशन आर इनहेंस्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही ये लॉ जो है वो पास किया जाता है। सिमिलरली द लॉ applicable only in the particular state are enhanced in the legislature of the state। जिस तरह से किसी देश को बनाने के लिए सेंट्रल लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट में, उसी तरह से किसी राज्य के यानी स्टेट के लॉ को बनाने के लिए ये लेजिस्लेचर में पास किया जाता है। What are the steps involved in this process? A bill or the draft of a purpose law is introduced either in the legislative assembly or council। मतलब दोनों ही हाउसेज में से कहीं भी इस बारे में एक बिल को, एक ड्राफ्ट को पास किया जाता है, मतलब इस पर डिस्कशन होता है। ईच एंड एवरी मेंबर यूज टू डिस्कस ऑन इट, और वहां के सभी लोग मिलकर इसको पास करते हैं। जब एक हाउस में ये पास हो जाता है, मतलब सपोज करो अगर कोई ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया है, तो इफ दैट ड्राफ्ट और बिल इज पास्ड इन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके बाद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, यानी दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पर भी इस पे डिस्कशन होगा एंड देन इट विल बी पास्ड देयर। आफ्टर इट इफ द बिल इज पास्ड इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल। सेम यही प्रोसेस हमारे लोकसभा और राज्यसभा में होता है। अगर सेंट्रल लेवल पर कोई बिल पास किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर इस पर डिस्कशन होता है, और फिर उसको लास्टली कौन पास करता है? प्रेसिडेंट। सेम इट इज हैपनिंग विद आवर स्टेट कि जब ये पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में से किसी एक हाउस में डिस्कशन होता है, देन दूसरे हाउस में डिस्कशन होता है, दोनों ही जगह जब ये बिल पास हो जाता है देन इट गोज टू गवर्नर फॉर अप्रूवल, एंड देन आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर इट बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर गवर्नर साइन। So it was the process, and there are various types of bills like money bill and financial bill। So बहुत सारे बिल्स होते हैं जिसको अप्रूव कराया जाता है गवर्नर से, उसके बाद ही ये एक्ट बन सकता है, उसके बाद ही ये बिल जो है वो पास होता है। So beta, today we knew what is the work of legislative council and legislative assembly and how a bill becomes an act. In our next video, we will discuss about the different functionaries of a state government. Till then, be safe. Thank you.